Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am continuing your chapter 7 of geography, that is lifeline of national economy. Students, before cycle test, we have already continuing this chapter, and today in my videos I am recapitulate the chapter that much portion we have already done, and then we will discuss the last topic of your chapter. Okay, so what's about the chapter is about the um, means of transportation and communication. In this chapter exactly we learn that which things are here those run the national economy. कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी नेशन की इकॉनमी को रन करते हैं. तो मेन थिंग इज़ transportation facilities. Why? Because as you all know that we required many things in our daily routine, and all these goods are reached to us with the help of transportation facilities. Okay, and we are also moving one place to another in search of work, in search of education, and for many other purposes. And in all these things we need what? For all these things we need what? Transportation facilities. So the transportation plays a very important role in the national economy. ओके चलिए, तो हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़े थे. एंड इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी हैव थ्री टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट: लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट. अंडर द लैंड ट्रांसपोर्ट वी डिवाइडेड इन रेलवे, पाइपलाइंस, देन inland, overseas, waterways, and airways. We have domestic airways and international airways. Domestic airways is that airways that run the airlines within the country, and international that run the airlines both in the international that connect the our country with other countries. Okay, now in domestic airways we have again two type: public undertaking and private undertaking. Public undertaking is that is under the government, and private airlines those are under in a single hand person or an individual or a group, that is private airlines. Okay, so this is your means of transport. Now further in the chapter we learn about all these means of transport one by one. The very first is roadways. Under the roadways we have already learned that what is the main benefits of roadways, what are the positive points of roadways. As we learn that roadways are easy to be easy to be uh, construction of roadways is easy as compared to railways, and it is also help us to provide door to door facilities. And the main point of the roadway is that it is the link of the another means of transport. It connected the another means of transport. ये सारे means of transport को connect करती है. अगर हमें रेलवे स्टेशन जाना है, एयरपोर्ट जाना है या पोर्ट पर जाना है, तो वी आर यूजिंग रोडवेज. सो इट इज़ अ लिंक बिटवीन ऑल द अदर मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है, एंड हेयर वी हैव ऑलरेडी लर्न द डिफरेंट टाइप ऑफ रोडवेज. हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रोडवेज पढ़े, जिसमें क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज दैट कनेक्ट द मेजर metropolitan city of the world of the country. Then national highways that connect the major cities of the central part of the country with the other highways. ठीक है, and then we have the state highways that connect the state with other states and district headquarters, district roads and other roads. And the last one is border roads. Border roads is the roads that connect the बॉर्डर एरिया ऑफ द कंट्री, जो कंट्री के बॉर्डर एरियाज़ को कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ बॉर्डर रोड्स. ओके, एंड सेकेंडली वी लर्न अबाउट द रोड डेंसिटी. हमने रोड डेंसिटी पढ़ी कि क्या है रोड डेंसिटी, कितनी है. एज इन आर कंट्री देयर इज़ लॉट ऑफ रोड डेंसिटी. वी हैव मेनी roads are there, but still we have many roads, those are unmetalled roads हैं हमारे यहाँ पर अभी भी. and it is very much difficult to use the unmetalled roads during the rainy season. Okay,
क्योंकि वो क्या हो जाता है कि रेनी सीजन में हम उन मेटल्स को, अनमेटल्ड रोड्स को यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट रोड डेंसिटी। नाउ द नेक्स्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ रेलवे। railways is also a very important mean of transport. It is the cheap mean of transport, and maximum people, or we can say, to cover the long distances we are using railway means of transport. हम लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए मैक्सिमम रेलवेज ही यूज़ करते हैं। रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फॉरेन एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। सबसे इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है थिंग्स और पैसेंजर्स दोनों को ट्रांसपोर्ट करने में। एज यू ऑल नो दैट विद द हेल्प ऑफ रेलवे वी आर ट्रांसपोर्टेड हैवी गुड्स एंड रॉ मटेरियल। हैवी रॉ मटेरियल भी हम रेलवे के थ्रू ही इंडस्ट्रीज तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो रेलवेज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। एंड अगर हम बात करें रेलवे के टाइप की, तो हमारे यहाँ पर 3 टाइप ऑफ रेलवेज वर्क कर रही हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। यू हैव टू बी लर्न दिस फैक्ट कि ब्रॉड गेज कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, मीटर गेज एंड द नैरो गेज। ओके, सो दिस इज आर टाइप ऑफ रेलवे लाइन्स। Then we learn that railway, what are the problems that are facing we are using while railway transportation. तो railway transportation में main problem क्या है, that it is tough to be lay down the railway lines in the undulating place, or we can say in mountainous region or in desert regions. Mountainous, undulating place and desert regions, it is very much tough to be lay down the railway lines. Okay, and one thing more, we are not able to use the railway lines during the bad weather conditions. बैड वेदर कंडीशंस में हम ना तो रेलवेज रन कर सकते हैं, ना ही एयरवेज रन कर सकते हैं, बट रोडवेज इज द दैट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट वी कैन रन इन एनी वेदर कंडीशन। हम किसी भी वेदर कंडीशन में हम उसको रन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज रेलवे टनल्स के थ्रू, और मैनी आर थिंग portions are here in the world, in our country, that is tough to be lay down the railway lines. Okay, but still we have a very famous mean of transport in our country, that is railway. railway हमारे यहाँ पर बहुत important role play कर रही है. Why? Because it is the cheap mode of transport. That's why maximum people use this mode of transport for leaving one place to another place. Okay, now the next one is pipelines. Pipeline, as this is a new mean of transport, and with the help of pipelines we are transporting liquid goods, petroleum and gases. And after that I already explained you the major पाइपलाइंस ऑफ आर कंट्री. मैंने आपको इंडिया की मेजर पाइपलाइंस बताई थी, वो हमने लर्न की थी, ठीक है. इसके बाद हमने पढ़ा था वाटरवेज. वाटरवेज cheapest mode of transport है. It is maximum used to be transport the goods from one country to another country, within the country and in the country with other countries and in our interlinking our country also. हमारे कंट्री के अंदर जो है वो भी हम मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट में वाटरवेज यूज़ करते हैं. इनलैंड में हमारे जो वाटरवेज हैं वो गंगा रिवर, इलाहाबाद हल्दिया, ब्रह्मपुत्रा रिवर, सादिया एंड डुबरी, वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला एंड हेयर कृष्णा रिवर पर काकीनाडा, पुडुचेरी स्ट्रेंथ ऑफ कैनाल्स हैं. ये हमारी इनलैंड है, मतलब कंट्री के अंदर अंदर जो वाटरवेज वर्क कर रही हैं, ठीक है. और जो अदर कंट्रीज़ के साथ हम वाटरवेज लेते हैं दैट इज़ सी पोर्ट्स. वो सी पोर्ट्स हैं. तो हमारे डिफरेंट सी पोर्ट्स मैंने आपको पढ़ाए थे, दैट इज़ कांडला, मुंबई. वी हैव टू बी ऑलरेडी लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज सी पोर्ट्स. हमने इन सी पोर्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं. कांडला, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई, हल्दिया, हुगली, ठीक है. ये सारे के सारे सी पोर्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. येस, नाउ कम ऑन द एयरवेज. Airways is also
another mean of transport and very much important, and it mainly work during the disasters के टाइम पर हमें एयरवेज की ज़रूरत पड़ती है in the country. Pavan Hans helicopters are here that is used to be provide the air services to off and natural gas corporation. offshore operations में हमारे मेनली हमारी हेल्प करती है, एंड इट ऑल्सो हेल्प अस टू प्रोवाइड द थिंग्स इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड. ठीक है, तो यहाँ से एयरलाइंस. ओके, नाउ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी मैंने आपको पढ़ा दिए थे कि हमारे यहाँ पर कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हम यूज़ करते हैं. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट with the help of these communication we are connected with the other people, जिसमें हमने मोबाइल फोन्स न्यूज़पेपर्स, बुक्स, टीवी एंड रेडियो, we already learn about these. Now the last topic of the chapter is international trade. Now what is international trade? International trade है क्या? International trade is the trade that we are having the trade relationship with the other countries. अभी आपने चैप्टर पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन इन योर इकोनॉमिक्स, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड. The whole chapter is about international trade, and from that chapter you learn that international trade plays very important role in the economic development of the country. With the help of international trade we are able to be increase our economic situations, we are able to be increase our foreign exchange. हम अपनी फॉरेन एक्सचेंज को इंक्रीज करने में हेल्प करता है इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है, तो लेट अस रीड इट. द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रेफर टू एज ट्रेड, एंड द मार्केट इन द प्लेस वेयर सच एक्सचेंजेस टेक प्लेस, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड. ट्रेड क्या है? इट इज द बिटवीन टू कंट्रीज, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड. It may be take place through sea, air or land routes. While local trade is carried in cities, towns and villages, state level trade is carried between two or more states. Advancement of international trade of a country is an index to its economic prosperity. Therefore, consider the economic barometer for a country. और ये हमारी कंट्री के लिए एक इकोनॉमिक बैरोमीटर है. तो यहाँ से पता चलता है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्री. नाउ इंडिया हैव अ ट्रेड रिलेशन विद द मेनी कंट्रीज. एज द रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड, नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड. येस, रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड बिकॉज नॉट एवरी कंट्री इज़ नॉट रिच इन ऑल टाइप ऑफ रिसोर्सेज. स्पेस बाउंड है, हमें कुछ ना कुछ दूसरे एरिया से मंगवाना पड़ता है. तो इसलिए कोई भी कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, स्पेशली इन टुडेज लाइफ. एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ ए कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट. अब देखो, बैलेंस बनाना ट्रेड में बहुत ज़रूरी है. बैलेंस क्या होता है कि ऐसा ना हो कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया और इम्पोर्ट कम हुआ, और ऐसा भी ना हो कि इंपोर्ट ज़्यादा हो गया और एक्सपोर्ट कम हुआ. तो एक बैलेंस बनना ज़रूरी है, और बैलेंस भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है. अगर हम चीज़ें जो बाहर भेज रहे हैं वो ज़्यादा हैं और जो मंगवा रहे हैं वो कम है, तो हमारा ट्रेड पॉजिटिव है. बट अगर हम जो बाहर से मंगवा रहे हैं यानी जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा है और जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कम है, तो हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो नेगेटिव है. तो नेगेटिव कब है ट्रेड बैलेंस? व्हेन एक्सपोर्ट इज मोर, इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट. ट्रेड बैलेंस इम्बैलेंस कब है? ट्रेड देखो, पॉजिटिव बैलेंस, पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस. पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस कब है? when export minus import. जब तो ये है तो पॉजिटिव है. और नेगेटिव कब है? नेगेटिव कब है? जब इंपोर्ट माइनस
एक्सपोर्ट। तो क्या होना ज़रूरी है? पॉजिटिव होना ज़रूरी है, ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम अर्न कर सकते हैं। इफ़ द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, इट इज़ टर्म्ड एज द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो वो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड बन जाता है। इंडिया हैज़ ट्रेड रिलेशनशिप विद ऑल द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड ऑल जोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारे ट्रेड रिलेशनशिप्स ऑलमोस्ट सभी के साथ हैं, ठीक है। हम एग्रीकल्चर और ऑल प्रोडक्ट्स को ट्रेड करते हैं। एक्सपोर्ट इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड थिंग्स का हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि 99% है। ओर्स और मिनरल से रिलेटेड हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 4.0% है। जम्स एंड ज्वेलरी में 14.7% है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 16.8% है, अकॉर्डिंग टू 2010 और 11 डाटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस डाटा हम सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद सेकंड नंबर पर ज्वेलरी को, देन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड है, ठीक है। कमोडिटीज़ इंपोर्टेड टू इंडिया इंक्लूड पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, pearls and precious stones, chemicals, coal, coke and briquettes, machinery in 2000। अब इनमें से कुछ चीज़ें हमारे यहाँ आ भी रही हैं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। पेट्रोलियम में 28.6% हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं। पर्ल्स और प्रीशियस स्टोन्स में 99.4 हम भी इंपोर्ट भी कर रहे हैं। केमिकल्स 5.2%, कोल और कोक 2.7%, मशीनरी 6.4%, ठीक है। तो बल्क इंपोर्ट इज ए ग्रुप रजिस्टर्ड a growth accounting for 28.2% of total imports. This group include fertilizers, cereals, edible oils, newsprint, broad manufacturers and newsprint. तो ये है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। आपको ये डाटा ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा ये वाले पॉइंट्स और ये वाले पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं, दैट्स इट, okay, for your examination point of view, okay. So this is all about your international trade. The next topic is tourism. Tourism also plays a very important role in day to day life. Now tourism is turned into a industry. टूरिज़म एक इंडस्ट्री में टर्न हो गया है। वो किस तरह से हुआ है, क्या इम्पोर्टेंस है टूरिज़म की, और हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल है टूरिज़म। बच्चे, टूरिज़म एक इंडस्ट्री इसलिए बन गया है कि आज मैक्सिमम लोग घूमने फिरने जाते हैं, और जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम वहाँ पर हम अपने मनी स्पेंड करते हैं, हम पैसा खर्च करते हैं। तो इसलिए टूरिज़म एक इंडस्ट्री बन गया है, और आज हर कंट्री, हर स्टेट टूरिज़म को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है। इससे वो उनको अर्निंग होती है, ठीक है। देखो, जब हम टूरिस्ट बनकर दूसरे प्लेस पर जाएंगे, हम होटल में रहेंगे, जाने आने के लिए पैसा खर्च करेंगे, बाहर से कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ परचेजिंग करेंगे, तो वो क्या है, वो अर्निंग है उस प्लेस को जहाँ हम गए, ठीक है। तो इसलिए टूरिज़म एक इंडस्ट्री के रूप में चेंज हो गया है, और आज मैक्सिमम कंट्रीज़ जो हैं, दे आर ट्राई टू बी अट्रैक्ट द टूरिस्ट इन देयर ओन कंट्रीज़, ठीक है। हमारे यहाँ पर ये डिफरेंट डाटा दिया हुआ है, इसको आप रीड कर लेना। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे टाइप ऑफ टूरिज़म बताने वाली हूँ कि हाउ मैनी टाइप ऑफ टूरिज़म आर देयर आर मैनी टाइप ऑफ टूरिज़म, मेनली सिक्स टाइप ऑफ टूरिज़म। टाइप ऑफ टूरिज़म में कि हम मेनली किस किस पर्पज़ के लिए टूरिज़म टूर एज ए टूर पर जाते हैं, किस पर्पज़ के लिए। देखो, इंडिया हेल्प इन द it also help in the development of international understanding about our culture and heritage. Foreign tourists visit India for heritage tourism. यहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में क्यों आ रहे हैं? फॉर हेरिटेज, हमारी विरासत को देखने के लिए। इको टूरिज़म, या फिर अपनी कुछ इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एडवेंचर करने के लिए। कल्चर टूरिज़म, मेडिकल टूरिज़म एंड बिजनेस टूरिज़म, दीज आर द टाइप ऑफ टूरिज़म for which purposes we are moving one place to another. Tourism in national integration को promote करती है, local handicraft और culture को pursue करती है, and it also help in the development of international understanding. Okay, so this is all about
टूरिज़्म, एंड नाउ इट बिकमिंग ए अपकमिंग इंडस्ट्री बन गई है टूरिज़्म. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर द इन लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन नेशनल इकोनॉमी. ओके, द नोट्स वी विल डिस्कस in the next video. Okay, till then, goodbye, thank you.